Today we will do and we will continue with the topic that was tens and ones. In the last two classes, we have done our tens and ones topic. Today we will also continue with the same topic. I hope you are enjoying the same topic. So it is almost 9:32 a.m. 18 student has come online, so we should start the class without wasting a single minute anymore. So let's start. Just let me share the screen. In the last class, what we have done our tens and ones topic, and told you, I have told you about the coins and the different types of money. Just a sec. गुड मॉर्निंग बेटा स्पीकर म्यूट रखेंगे. गुड मॉर्निंग. सभी बच्चे स्पीकर अनम्यूट कोई नहीं करेगा. ठीक है, बार बार मैं एक बात नहीं बोलूंगी बेटा, स्पीकर सबको ही म्यूट रखने हैं ड्यूरिंग द होल क्लास. If you have any query, if you have any doubt, you can ask me in the chat section only. I'm watching your, I'm reading your all the messages. Okay, so don't be bother about that. Either madam will read our question or not. Either our madam will solve our query or not. So I have told you in the last class also that in tens and ones we will understand. First, we will understand the different types of coin. I have already told you about the different types of coins. That was 1, 2 rupees, and 5 rupees. We have already discussed about this, and we have also discussed about the 10 rupee note, 20 rupee note, 50 rupees note, 100 rupees note, 500 rupees note, and 2000 rupees note. So this is the different types of notes in India which is used. Whenever we want to buy something, we use these type of coins, either these types of notes. We have discussed about the Ritu when she went to the market chocolates. We have already discussed about this also. And we have also discussed about how Ram has how Ram has gone to market to buy pencils. Okay, now we will continue with the same topic and we will move further. So now here is one more picture. Here are two aunties. यहाँ पर दो आंटियां हैं. One is Komal aunty and one is Sonia aunty. Okay, one is Komal aunty and the other is Sonia aunty. Now what happened between them? Let's find out. This is Sonia aunty. Sorry, this is Komal aunty and this is Sonia aunty. Now Komal aunty is saying, ये Komal aunty है. I will write K here and S here so that your concept of Komal aunty and Sonia aunty will be more clear to you. Komal aunty said, I have 50 rupees. ठीक है, यहाँ पर सोनिया होना चाहिए. सो कोमल आंटी कहती हैं सोनिया से, सोनिया मेरे पास 50 रुपीज हैं. कितने रुपीज हैं? 50 रुपीज है. मैम साउंड इज नॉट क्लियर. जिया पहले मुझे चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे वॉइस मेरी ऑडिबल है कि नहीं. बेटा एक मिनट रुकेंगे. जस्ट अ सेक बेटा, जस्ट अ सेक. वॉइस को बढ़ा देती हूँ थोड़ा. My voice is full. Jia, you must check your mobile sound because all the students are saying voice is audible here, madam. So there must be a problem from your side only. There is no problem from my side, bache. So just find out once again what is the reason behind that. So I should start now. So
here was what I am discussing about two aunties. One is Komal auntie and what is Sonia auntie. Okay, what they are discussing? They are discussing about that Komal auntie, sorry, Sonia auntie has 50 rupees. Let the screen visible to you. Okay, so this is our Sonia auntie and this is our Komal auntie. Just a second. Hmm. So I was saying this is our सोनिया आंटी एंड दिस इज आवर कोमल आंटी. चलो हम आंटियों को बदल देते हैं. ठीक है, ये हमारी सोनिया आंटी है, ये हमारी कोमल आंटी है. सोनिया आंटी कोमल से कहती है कि मेरे पास कोमल कितने रुपीस हैं? 50 रुपीस हैं. कितने रुपीस है? 50 रुपीस हैं. लेट्स गो टू द मार्केट एज आई वॉन्ट टू बाय अ न्यू पर्स फॉर मी. आंटी कहती है कोमल तुम क्या मेरे साथ मार्केट चलोगी? मुझे एक पर्स खरीदना है और मेरे पास कितने रुपीस है? 50 रुपीस. ओके, सो अब वो मार्केट में पहुंच गए. मार्केट में सेल लगी हुई थी. यहाँ पर जो पर्स है, पर्स का प्राइस है, जल्दी मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे बच्चे. पर्स का प्राइस क्या लिखा हुआ है? जल्दी बताएंगे. यस, एक पर्स का प्राइस कितना है? 20 रुपीज. Here are 4 purses. Okay. Now, Sonia has how much amount? She has 50 rupees. And the price of one purse is 20 rupees. Now, let's check what happened when they went to the market. देखते हैं अब क्या हुआ था जब वो मार्केट में पहुंचे. सोनिया के पास 50 रुपीज है, एक पर्स 20 रुपीज का है. देखते हैं क्या हुआ. हाउ मैनी पर्स नीतू, सॉरी यहाँ पर होना चाहिए सोनिया. हाउ मच पर्स सोनिया कैन बाय? सोनिया कितने पर्स खरीद सकती है? उसके पास 50 रुपीज है और जो एक पर्स का प्राइस है वो 20 रुपीज है. ठीक है, अब मुझे बताइए सोनिया कितने पर्स खरीद सकती है? दिया ने कहा है 2, अंकिता, स्निग्धा, कृतिका, नीरज, प्रीति, अर्त्री, कृति, सुमेधा, ध्रुवा, अंकिता, अनिर्बन, श्रेयोशी, दिया, all are saying 2 purse. Jia and Prithvi also. Yes, उसके पास 50 रुपीज है. एक पर्स की वैल्यू प्राइस 20 रुपीज है. 20 का एक पर्स, so she can buy only 2 purse because the cost of two purse is 40 rupees. So she can buy only 2 purse. Okay. How much money did she spend? उसने कितने रुपए खर्च कर दिए अगर उसने 2 पर्स लिए तो? बताइए जल्दी से. जिया कह रही है 20 रुपीज. अगर उसने 2 पर्स खरीदे तो वो 20 कैसे खर्च किए उसने? श्रेयसी कह रही है 10 रुपीज. नो, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए. अगर उसने 2 पर्स खरीदे तो उसने कितने पैसे खर्च कर दिए? ओके. ऋषि, उसने अगर 2 पर्स खरीदे तो उसने कितने रुपए खर्च किए? जल्दी से दोबारा बताएंगे. जल्दी से मुझे जिया और श्रेयोशी भी दोबारा आंसर देंगे. यस, एक पर्स मैंने अभी बताया, एक पर्स जो था वो 20 रुपीज का था. उसने 2 पर्स खरीदे. 20 प्लस 20 का एक पर्स, 20 का एक और पर्स, तो कितने उससे खर्च किए? 20 में 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 40. Yes, the answer will be 40.
हाउ मच मनी डिड सोनिया लेफ्ट विद? अब सोनिया के पास कितने पैसे बचे एंड में? उसने 2 पर्स खरीद लिए। अब सोनिया के पास 50 में से कितने पैसे बचे हैं? जिया 50 कैसे बच सकते हैं बेटा? क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। 50 उसके पास है, 2 पर्सेस उसने खरीद लिए, तो बेटा 50 कैसे बचेंगे? आप मुझे ये जवाब दीजिए जिया। यस, 10 रुपीज बचे। 50 का टोटल अमाउंट था उसके पास, 40 रुपीज के उसने पर्स खरीद लिए, तो 10 रुपीज ही तो बचे। ठीक है, चलिए। क्या अगर सोनिया कोमल को एक और पर्स दिलाना चाहे तो उसे कितने रुपए और चाहिए होंगे? सोनिया को अगर कोमल को पर्स दिलाना है, ऋषि क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। उसके पास 10 रुपीज ऑलरेडी बचे थे, है ना? और अगर वो बोले कि कोमल तुम भी एक पर्स ले लो, तो उसे कितने रुपीज और चाहिए होंगे खरीदने के लिए? 10 रुपीज तो सोनिया के पास है ना, तो कितने रुपीज और चाहिए होंगे? सिर्फ 10 रुपीज ओनली बच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। 1 सेकंड रुकेंगे सभी बच्चे। 1 सेकंड सभी बच्चे रुकेंगे। कोमल का और तुम्हें सोनिया का किस्सा समझ में आया कि जब वो पर्स खरीदने गए तो उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ शॉपिंग करने गए जब वो आपस में, तो उनके पास 10 रुपीज बचे। और जब एंड में सोनिया ने बोला कोमल को कि भाई तुम भी एक पर्स ले लो, तो उसके पास 10 रुपीज कम पड़ गए थे। चलिए अब आगे और किससे देखते हैं, हम किसी और की भी कहानी सुनते हैं। कोमल और हमने पहले पिंकी की सुनी, राम और श्याम की कहानी सुनी, 2 आंटियों की कहानी, कोमल और सोनिया आंटी। चलिए अब मुझे आप बताएंगे हाउ मच मनी डू द नोट्स एंड कॉइन्स। देखिए, अब आपको मुझे एक चीज गिनकर बतानी है कि जब यहाँ पर 10 रुपीज के 3 नोट हैं, ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना है? 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज। बॉक्स में बताइए मैं क्या लिखूं, मेरे पास कितने रुपीज हैं टोटल? ध्यान से सोचकर सभी बच्चे बताएंगे। जिसको अगर सारी स्टोरीज क्लियर हो गई, पिंकी की, राम की, श्याम की और कोमल आंटी और सोनिया की, तो वो ये क्वेश्चन आसानी से बता देगा। मेरे पास कितने रुपीज हैं? वेरी गुड, अरे वाह, सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, शाबाश बच्चे। तो 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, मैंने बताया था एडिशन का तरीका सेम रहता है। जब हमें कोई टोटल पूछता है कि आपके पास टोटल अमाउंट बताओ कितना है, तो हमेशा एडिशन कर देते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है बेटा इस क्वेश्चन में? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्लियर हुआ? यहाँ 10 रुपीज का नोट था, यहाँ 10 रुपीज का फिर से एक नोट था, यहाँ 10 रुपीज का फिर से एक नोट था। ठीक है, तो हमारे पास टोटल मेरे पास कितने रुपीज हैं? 30 रुपीज। अच्छा मान लीजिए 10 रुपीज का आपने इसमें से लंच खरीद लिया, अब आपके पास कितने रुपीज बचे बताइए? चलिए मैं देखती हूँ आपको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। वेरी गुड। मैंने पूछा है अगर आपके पास ये टोटल 30 रुपीज थे, इसमें से आपने 10 रुपीज का स्कूल में लंच खा लिया, अब आपके पास कितने बचे हैं? वेरी गुड, शाबाश बच्चे। चलिए सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। ऋषि 2 रुपीज नहीं बेटा, शायद जीरो लिखना भूल गए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखेंगे यहाँ 1 रुपीज के मेरे पास 2 कॉइन्स है और 10 रुपीज के मेरे पास 3 नोट्स हैं। टोटल अमाउंट बताइए कितना है? पहले कॉइन्स का बताइए कितने रुपीज है? अरे वाह, बच्चों ने डायरेक्ट आंसर दे दिया। ठीक है, डायरेक्ट जो देना चाहते हैं डायरेक्ट ही दीजिए। अब चलिए, मेरे पास 1 1 रुपीज के 2 कॉइन, तो यानी कि 2 रुपीज, और यहाँ 3 नोट्स है 10 10 रुपीज के। बताइए जल्दी कितने रुपीज हुए मेरे पास? ऋषि ध्यान से जवाब दे, ऋषि बेटा, ऋषि ध्यान से जवाब दो। देखो मैं लिख भी रही हूँ।
₹10 के 3 नोट और ₹2 ₹1 के 2 कॉइन। टोटल देखो, ₹2, ₹10, ₹10, ₹10, 30 और 30 में 2 ऐड किया, जिया। टोटल अमाउंट जिया बताओ जल्दी से कितना है मेरे पास अब। जिया जल्दी जवाब देखिए बच्चे। ध्रुवा 50 कैसे हो गया बेटा। ध्रुवा दोबारा देखेंगे, ₹10 के 3 नोट, कितना आंसर हुआ ध्रुवा। 32 में। बेटा स्पीकर म्यूट रखेंगे और मुझे सिर्फ चैट सेक्शन में बताएंगे, मैं मैसेजेस देख रही हूँ। ₹30, यस। और ₹2 के, ये ₹1 के 2 कॉइन है। अब टोटल बताओ कितना हुआ अमाउंट। 50 कैसे हो गया आप। यस 32। ठीक है, कितना अमाउंट है मेरे पास अब, ₹32। ठीक है, और यहाँ रुपीस का साइन भी लगाना होता है, जो टू करके उसकी कमर पे हम कट कर देते हैं, ये होता है ₹2 का साइन। ओ सॉरी, ये होता है रुपीस का साइन। मैं फिर से बताऊंगी रुपीस का साइन क्या होता है। टू लिखकर इसके पेट पे कट मार देते हैं, ये होता है रुपीस का साइन। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वाले में देखेंगे। ₹10, ₹10 के 4 नोट है मेरे पास, तो 10 का टेबल 4 तक गा दो फटाफट। और ₹5 के 2 कॉइन है। जल्दी बताएंगे, दिया ध्यान से देखेंगे पहले बेटा, आंसर एकदम से भटक से नहीं देना है, पहले आप देखो ठीक से। आप देखते नहीं हो, बी दीक्षा दोबारा देख के आंसर दो। ₹5 की 2 कॉइन्स है। बी दीक्षा दोबारा देखेंगे। अब्बू 82 कैसे हो गया बेटा। ₹10 के 4 नोट है। आप लोग ऐसे बेटा गैस करेंगे तो नहीं चलेगा, आपको ठीक से कैलकुलेशन करनी है, भागकर आंसर नहीं देना। ऋषि गलत है आंसर आपका भी, दिया आपका भी गलत है, प्रतीक आपका भी गलत है, अब्बू गलत है, दोबारा जवाब देंगे। बी दीक्षा गलत, दोबारा देंगे। आर्त्री दोबारा देंगे बच्चे। दिया गलत है, दोबारा दोगे, ये बच्चे दोबारा जवाब देंगे। कृति का गलत है, दोबारा। ₹10 के 4 नोट, आंसर बताइए कितना होगा ₹10 के अगर 4 नोट है मेरे पास। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, श्रेयोशी ₹10 के 4 नोट है तो 41 कैसे होंगे बेटा। ₹10 के मेरे पास 4 नोट है तो 41 कैसे होंगे। नीरज ₹10 के 4 नोट है, 45 कैसे होंगे। जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए बस। ₹10 के 4 नोट कितने हुए मेरे पास, 40। वेरी गुड, जल्दी देंगे सभी बच्चे जवाब इसका। पहले आप लोग भाग के जवाब देते हो, पहले आप देखो स्क्रीन पे आ क्या रहा है। यस, ₹10 के 4 नोट मतलब ₹40। ओके, ₹5 के 2 कॉइन्स कितने हुए अमाउंट। ₹5 के मेरे पास 2 कॉइन है। वेरी गुड, अब 40 और ₹10 ऐड करो, कितना हुआ। यस, तो समझदारी से काम करेंगे, झटाक से आंसर नहीं देंगे जब तक आप किसी चीज के लिए श्योर नहीं है। ठीक है, तुक्के नहीं लगाइए, समझिए इसको बेटा। पहले हम कॉइन्स की अलग एडिशन करेंगे, फिर नोट की अलग करेंगे, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। ₹5 के 2 नोट मतलब ₹10, ₹10 के 4 नोट मतलब ₹40। तो टोटल अमाउंट हमारे पास है ₹50। बात इतनी सी, यहाँ लिख देंगे 50, और उसके साथ में ही रुपीस का साइन बना दे, सॉरी, रुपीस का साइन बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आपको कितनी चीजें समझ में आई हैं। एक सेकंड रुकेंगे। लेट्स सी कितने बच्चों को ये चीज समझ में आई है। चलिए, अभी हमने अमाउंट का समझा, अमाउंट का आप लोगों को क्लियर है कैसे एडिशन करनी है।
मुझे बताएंगे अमाउंट का, आप लोगों को क्लियर है कैसे एडिशन करनी है? चलिए बेटा, फिर मैं इसको यही एंड करती हूँ, क्योंकि मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अगली क्लास में समझाऊंगी। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे भागना नहीं है, मैं आराम से कराऊंगी। वेट करेंगे, मैं अभी फिर से फेस टू फेस मोड में आ रही हूँ बेटा। सो अब मैं आपसे कुछ ओरल क्वेश्चन पूछूंगी। मैं आगे बढ़ सकती थी लेकिन मैं बढ़ी नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मुझे उनकी कंफ्यूजन पहले क्लियर करनी है। नेक्स्ट क्लास में मंडे पे हम इसी में आगे बढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल मुझे ये बताइए, चलिए मैं कुछ ओरल क्वेश्चन पूछती हूँ, देखती हूँ आपको कितना समझ में आया। ठीक है, कोई डाउट है पहले पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट है तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी, क्योंकि आप पहले कह देते हैं डाउट नहीं है, डाउट नहीं है ना? ओके, डाउट है तो मुझसे बच्चा पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी ओरल। डाउट है या नहीं? अगर है तो लिखिए यस मैम, और अपना डाउट लिख दीजिए। जिया ने कहा है यस मैम, तो क्वेश्चन लिखिए, क्या डाउट है बेटा? जो भी बच्चा यस लिख रहा है डाउट लिख दीजिए, डरिए नहीं बेटा, पूछना है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए ही तो हूँ, है ना? तो कोई डाउट है तो पूछिए चैट सेक्शन में। नहीं है? चलिए अब मैं ओरल कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, देखती हूँ कितना आपको समझ आया। आज हमने सीखा मनी। मनी की एडिशन कैसे करती है, नोट मैम और कॉइन। वही मेरे को कुछ डाउट हो रहा है। कौन बच्चा है ये, नाम बताइए बेटा। योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल, बताइए बच्चे। मैम मैं जिया। हाँ बोलो, क्या डाउट है, बोलो बोलो। मैम जो अभी हमने जो पढ़ के खत्म किया ना, जो आपने हाँ मेरे से उसमें कोई डाउट हो अ, रहा है। अच्छा, डाउट हो रहा है नोट्स और कॉइन्स के एडिशन में। नोट्स और कॉइन्स की एडिशन में प्रॉब्लम आ रहा है जिया? यस मैम। चलो मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनेंगे इस बार, ओके? चलिए वेट करेंगे, मैं स्लाइड निकाल लेती हूँ सो दैट आपका डाउट क्लियर हो। जस्ट अ सेक, इसे देखते हैं। चलिए अब देखिए बेटा, मैंने आपसे पूछा था, आपको स्क्रीन दिख रही है ना बच्चे? हाँ। तो मैंने आपसे पूछा था कि जब हम 10 रुपीज है मान लीजिए आपके पास, ठीक है? मैंने आपको बोला आपके पास है 10 रुपीज का नोट, आपको मैंने दिया, 10 रुपीज आपकी मम्मी ने दिया, और 10 रुपीज आपके पापा ने दिया मान लीजिए। अब आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, जल्दी बताइए। 10 में 10 प्लस करेंगे, 10 में 10 प्लस करेंगे, जल्दी बताइए। ऋषि बेटा 20 कैसे हो जाएगा बेटा, मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा आप कैसे एडिशन कर रहे हैं। आपको पहले एडिशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। ऋषि, 10 रुपीज का नोट मम्मी ने दिया, 10 रुपीज का नोट मैंने दिया, 10 रुपीज का नोट पापा ने दिया, तो 10 रुपीज, 10 रुपीज, 10 रुपीज, ये मम्मी ने दिया, ये मैंने दिया, ये पापा ने दिया। तो अभी आपके पास क्या 20 रुपीज हुए हैं? जिया, हाँ जिया ने आंसर दे रखा है। ऋषि भी आंसर देगा जल्दी से, 10 रुपीज के 3 नोट हैं। यस, कितना अमाउंट हुआ? 30 रुपीज बेटा, है ना? चलिए अब मैं आगे इसी में समझाती हूँ और आपको। अब मैं देखिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। यहाँ पर 5 रुपीज के 2 कॉइन हैं। अब आपके पास कितना अमाउंट है, सिर्फ कॉइन्स की बात कर रही हूं मैं, सिर्फ कॉइन्स, सिर्फ कॉइन्स की बात कर रही हूं मैं। जल्दी बताइए कितने रुपीज हुए, 5 रुपीज के 2 कॉइन्स है तो? 10 रुपीज। 5 रुपीज के 4 कॉइन है मान लीजिए यहाँ पर, ये भी 5 रुपीज का कॉइन है और ये भी 5 रुपीज का कॉइन है। कितने रुपए हैं आपके पास? जिया ने क्वेश्चन पूछा है एंड शी इज नॉट आंसर।
आंसरिंग, ओके शी हैज गिवन द आंसर, सॉरी। जल्दी बताएंगे जिया, और भी बच्चे बताएंगे सभी। 5 रुपीज के 4 कॉइन, हाउ मच द टोटल अमाउंट डू यू हैव? टेल मी फास्ट। अब लिसन द क्वेश्चन केयरफुली बच्चे। 5 रुपीज के 4 कॉइन्स, नॉट 6 कॉइन्स। 5 रुपीज के 4 कॉइन्स है बच्चे। लिसन द क्वेश्चन केयरफुली, देन ओनली आंसर द क्वेश्चन। यस जी, करेक्ट। 5 रुपीज के अगर 4 कॉइन्स हैं तो हमारे पास है 20 रुपीज। 5 रुपीज के 6 कॉइन्स। नाउ आंसर मी, 5 रुपीज के 6 कॉइन्स, हाउ मच अमाउंट डू यू हैव? साक्षी गलत, कृतिका गलत, दिशा गलत। 5 रुपीज के 6 कॉइन्स, 5 के रुपीज के 6 कॉइन का मतलब 5 को 6 टाइम हमें ऐड करना है। 5 रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपीज, क्योंकि 6 कॉइन है तो 6 टाइम्स इसको 5 को लिखकर हमें ऐड करना है। या कुछ बच्चे जो कर सकते हैं वो 5 का टेबल डायरेक्ट 6 तक काउंट कर लीजिए। जिया गलत आंसर। 5 का टेबल अगर आप 6 टाइम गाएंगे तो 60 आंसर आएगा। वन रॉन्ग आंसर, दिशा रॉन्ग आंसर। ऋषि रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे बेटा। 5 रुपीज के 6 कॉइन्स है तो 5 रुपीज के 6 कॉइन मतलब 5 को। नहीं आ रहा समझ में बेटा? नो मैम। नाम बताओ बेटा अपने। मैम मैं जिया। जी आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनो बेटा पहले। 5 रुपीज के 3 कॉइन्स है, कितना अमाउंट है बताइए आपके पास? बाकी बच्चे चैट में लिखना बंद करेंगे। जिया आप अपना स्पीकर अनम्यूट रखें और मैं जो क्वेश्चन पूछी फटाफट से मुझे जवाब देंगे बच्चे। 5 रुपीज के 3 कॉइन्स है, कितने? 5 रुपीज के 3 कॉइन्स है, कितना अमाउंट?